ناظرین، میں سید سہیل آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل بریکنگ نیوز میں۔ آئیے سرخیوں پر ایک نظر کرتے ہیں۔ غزہ میں غذائی قلت سے ہونے والی اموات ظلم ہے، صدر اوباما۔ غزہ میں بھوک نے مزید 14 افراد کی جان لے لی، اسرائیلی حملوں میں مزید 41 فلسطینی شہید۔ غزہ کے عوام چلتی پھرتی لاشوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، اقوام متحدہ کی دل دہلانے والی رپورٹ۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے پارلیمنٹ میں بتائی آپریشن سندور کی حقیقت، کہا ہے یہ کسی کے دباؤ میں نہیں روکا گیا۔ پہلگام حملہ پاکستان کے ملوث ہونے کا ثبوت نہیں ملا، سابق بھارتی وزیر داخلہ۔ جب خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے تو پاکستان سے کرکٹ کیوں؟ پارلیمنٹ میں اسد الدین اویسی کا سوال۔ اے آئی کا بڑھتا استعمال، بڑی بڑی کمپنیوں کے ہزاروں ملازمین نوکری سے برخاست۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی سرخیاں، آئیے اب تفصیل سے خبروں کو جانتے ہیں۔ غزہ میں غذائی قلت سے ہونے والی اموات ظلم ہے، صدر اوباما۔ امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما نے غزہ میں اسرائیلی اقدامات کے غذائی قلت سے ہونے والی اموات کو ظلم قرار دے دیا۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما نے کہا کہ امداد کو غزہ کے لوگوں تک پہنچنے کی اجازت دی جانی چاہیے، عام شہریوں سے خوراک اور پانی دور رکھنے کا کوئی جواز نہیں۔ باراک اوباما نے کہا کہ فلسطینی علاقوں میں بھوک کے بحران کی اطلاعات فوری اقدامات کرنے کی ضرورت کو اجاگر کرتی ہیں۔ امریکہ کے سابق صدر کا کہنا تھا غزہ کے بحران کے دیرپا حل میں تمام یرغمالیوں کی واپسی اور اسرائیلی فوجی کارروائیوں کا خاتمہ شامل ہونا چاہیے۔ غزہ میں بھوک نے مزید 14 افراد کی جان لے لی، اسرائیلی حملوں میں مزید 41 فلسطینی شہید۔ غزہ سٹی کے الشفا ہسپتال کے ایک ذرائع نے بتایا ہے کہ نومولود محمد ابراہیم عدس غذائی قلت اور دودھ کی متبادل خوراک کی شدید کمی کے باعث جاں بحق ہو گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے مطابق غزہ سٹی وہ علاقہ ہے جہاں غذائی قلت سب سے زیادہ شدید ہے، اور وہاں 5 سال سے کم عمر کے تقریباً ہر 5 میں سے ایک بچہ شدید غذائی قلت کا شکار ہے۔ رپورٹ کے مطابق غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ محصور علاقے میں اسرائیل کی جانب سے مسلط کردہ بھوک اور غذائی قلت کے باعث جاں بحق ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 147 ہو گئی ہے، جن میں 88 بچے شامل ہیں۔ وزارت نے مزید بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بچوں سمیت 14 افراد بھوک اور غذائی قلت کے باعث جاں بحق ہوئے، حالانکہ اسرائیل نے محدود مقدار میں امداد غزہ میں داخل ہونے دی تھی۔ غزہ کے عوام چلتی پھرتی لاشوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، اقوام متحدہ کی دل دہلانے والی رپورٹ۔ فلسطین کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے UNRWA کے سربراہ فلپ لازارینی نے غزہ میں اپنے ایک کارکن کا یہ جملہ نقل کیا ہے کہ غزہ کے لوگوں کو نہ زندہ کہا جا سکتا ہے نہ مردہ، وہ چلتی پھرتی لاشوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ یاد رہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے امریکہ کے بھرپور تعاون اور حمایت سے غزہ میں امداد پہنچانے کے سارے راستے بند کر دیے ہیں اور خوراک تقسیم کرنے کے کچھ مراکز قائم کر رکھے ہیں، اور جب فلسطینی وہاں کھانا اور پانی لینے کے لیے جاتے ہیں تو صہیونی فوجی ان پر فائرنگ کر دیتے ہیں۔ ان دنوں غزہ میں شہید ہونے والوں کی اکثریت اب بھوک سے شہید ہو رہی ہے یا پھر کھانے کے لائن میں صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں۔ اس دوران غاصب صہیونی حکومت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اقوام متحدہ کی امداد اس نے اس لیے روکی ہے کہ اس پر حماس قبضہ کر لیتی ہے، لیکن اس کے اس دعوے کی امریکی اخبار نیویارک ٹائمز نے تردید کی ہے۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے پارلیمنٹ میں بتائی آپریشن سندور کی حقیقت، کہا ہے یہ کسی کے دباؤ میں نہیں روکا گیا۔ پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ حملہ کے بعد ہندوستانی مسلح افواج کے ذریعہ انجام دیے گئے آپریشن سندور پر پارلیمنٹ میں بحث شروع ہو چکی ہے۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے سب سے پہلے آپریشن سندور کے حوالے سے اپنی بات رکھتے ہوئے کہا کہ آپریشن سندور مسلح افواج کی خدمات کی بہترین مثال ہے، جس کے تحت پاکستان کی ہر حرکت کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ آپریشن سندور کسی کے دباؤ میں نہیں بلکہ مقصد کے حصول کے بعد روکا گیا۔
साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। रखता है। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। अध्यक्ष, मैं सदन को फिर से आश्वस्त करना चाहता हूं, आपने राजनीतिक जीवन में अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। पेहलगाम हमला पाकिस्तान के मुलव्वस होने का सबूत नहीं मिला, साबिक भारतीय वजीर दाखिला। पेहलगाम वाकया किसने किया? क्या पाकिस्तान मुलव्वस था या मोदी सरकार ने बहाना बनाया? भारत के साबिक वजीर दाखिला पी चिदम्बरम ने बड़ा पोल खोल दिया। तफसीलात के मुताबिक भारत के साबिक वजीर दाखिला पी चिदम्बरम ने कहा है कि पेहलगाम दहशतगर्दाना हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं है। याद रहे कि मकबूजा कश्मीर के सियाहती मकाम पेहलगाम पर फायरिंग के वाक़ये में 26 शहरी हलाक हुए थे। साबिक भारतीय वजीर दाखिला ने सवाल उठाया कि मोदी सरकार ने किस सबूत की बना पर दहशतगर्दों को पाकिस्तानी करार दिया? क्या उन्होंने पाकिस्तानी होने की शनाख्त की थी? साबिक भारतीय वजीर दाखिला इल्जाम आयद किया कि हमला करने वाले दरअसल भारतीय हैं और उन्होंने भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। ख्याल रहे कि हुकूमत पाकिस्तान ने पेहलगाम वाक़ये की न सिर्फ मजम्मत की थी बल्कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत से शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश भी की थी, लेकिन इसके बावजूद भारत अब तक पेहलगाम वाक़ये के हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ इल्जामात से आगे नहीं जा सका और न ही अब तक मामले की तहकीकात मुकम्मल हो सकें। जब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते तो पाकिस्तान से क्रिकेट क्यों? पार्लियामेंट में असद अल-दीन ओवैसी का सवाल। अल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन AIMIM के सदर और रुकन पार्लियामेंट असद अल-दीन ओवैसी ने पीर को लोकसभा में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जंग बंदी से मुताल्लिक दावों पर सख्त एतराज जाहिर किया। उन्होंने सवाल किया, जब वजीर आज़म खुद कहते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते तो फिर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना क्यों जारी है? ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर पर बहस में हिस्सा लेते हुए हिंदुस्तानी फौज की बहादुरी और कुर्बानियों की तारीफ की और कहा, हमें अपनी फौज पर फख्र है। हमारी अफवाज ने पाकिस्तान के एयर बेसेस को तबाह किया। लेकिन साथ ही उन्होंने हुकूमत को कई महाजों पर तनकीद का निशाना बनाया। 7.5 लाख हमारी फौज और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, ये कहां से 4 चूहे घुसकर हमारे भारत के नागरिक को मारे? अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? LG पर फिक्स होगी तो LG को बरतरफ करिए, IB पर आती है तो एक्शन लीजिए, पुलिस पर आती है तो एक्शन लीजिए, मगर आप ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन कर दिया और हम खामोश लोग भूल जाएंगे, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा। मैडम, डिटरेंस आपकी क्या है? आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपने बालाकोट किया, फिर ये पहलगाम हुआ, तो आपकी डिटरेंस की पॉलिसी नाकाम साबित हुई, कश्मीर की पॉलिसी नाकाम साबित हुई, 370 हटा दिया आपने एक रियासत को यूटी बना दिया और उसके बावजूद भी दहशतगर्द वहां पर पहुंच गए। तो और अफसोस मुझे इस बात का होता है मैडम कि पाकिस्तान को हम जानते हैं, पाकिस्तान और इजराइल इस पूरी दुनिया में एक फेल्ड स्टेट है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, जिससे हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, इसको अपना दोस्त कहते हैं, उस देश का प्रेसिडेंट उस शख्स को बुलाकर खाना खिलाता है अपने साथ जिसके भाषण से हमारे लोग मारे गए थे। तो क्या आपकी खर्जा पॉलिसी कामयाब हुई? आप देख लीजिए। अच्छा, हमारे देश में एक ऐसी तंजीम है जिसका वजूद नफरत की बुनियाद पर और मजहबी अज़वियत को फैलाने के लिए बनाया गया। उनको तकलीफ है सेकुलरिज्म से, सोशलिज्म से, मगर हमारे संविधान के प्रियम्बल में लफ्ज सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब यह है कि हम खुद मुख्तार हैं, हम हाकिम आला हैं, हम अपने मुल्क के मुकद्दर का फैसला करेंगे।
एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा? ये आपका नेशनलिज्म है। अफसोस होता है मुझे सर। AI का बढ़ता इस्तेमाल, बड़ी बड़ी कंपनियों के हजारों मुलाजमीन नौकरी से बर्खास्त। आलमी मंडी में इक्तिसादी गैर यकीनी सूरत हाल, मुनाफा में कमी और मसनूई जहानत। AI के बढ़ते इस्तेमाल ने टेक्नोलॉजी कंपनियों को सख्त इक़दामात पर मजबूर कर दिया। हजारों मुलाजमीन को बर्खास्त किया जा रहा है ताकि कंपनियों के अखराजात में कमी लाई जा सके। कोरोना के बाद से शुरू होने वाली ये लहर अब भी जारी है और 2025 में भी लाखों अफराद नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इट कंपनी TCS ने ऐलान किया कि वो अगले साल के वस्त तक अपने कल मुलाजमीन में से 2% यानी तकरीबन 12,200 मुलाजमीन को फारिग करेगी। कंपनी के CEO के करथिवीसुन के मुताबिक ये कटौती खास तौर पर मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट लेवल पर होगी। उनका कहना है कि तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के साथ हम आहंग होने के लिए ये इक़दामात जरूरी हैं। रियासती वजीर उंधुरा प्रदेश सुवीतुम्मा ने साबिका वजीर आला उंधुरा प्रदेश वेस जगन मोहन रेड्डी पर तनकीद की और कहा कि BC तबके के लिए जगन मोहन रेड्डी ने कुछ नहीं किया। जगन मोहन रेड्डी तेलुगु देशम हुकूमत पर झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। రకం మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నేను అడిగే సూటి ప్రశ్న ఒకటే, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బీసీ హాస్టల్స్ బీసీ కురుకులాసు సృష్టికర్తే అన్న నందమూరి రామారావు గారు బీసీలకు పేటెంట్ హక్కే తెలుగుదేశం పార్టీ అన్న విషయాన్ని మర్చిపోయి మీరు డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ చేస్తున్నారు. మరి బీసీ హాస్టల్స్ కి మీరేమైనా చేశారా అని మిమ్మల్ని సూటి ప్రశ్న వేస్తున్నాను. చర్చించడానికి మీ బీసీ మంత్రులుగా పనిచేసిన వారు ఎవరైనా వస్తే మేము ఈ సంవత్సరం లోపల ఏ విధంగా బీసీ హాస్టల్స్ ని బీసీ గురుకుల పాఠశాలలు ఆల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్ ని ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేశామో చెప్పడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నామన్న విషయాన్ని కూడా మీకు తెలియజేస్తున్నాం. ఏదో ఒకటి తప్పు చేయడం, తప్పు చేసిన దాన్ని డైవర్ట్ చేసుకోవాలని చూడడం ఇదే మీ పని. నిన్నటి రోజు మీరు దుప్పట్లు ఇవ్వలేదన్నారు. మేము ఇచ్చిన తర్వాతే మీరు చెప్తారా? 3 లక్షల చిల్లర దుప్పట్లు ఇవ్వాలంటే 1,00,000 దుప్పట్లు ఆల్రెడీ మేము పిల్లలకు అందజేశాం. మేము రేపో మన్నాడో ఇస్తామన్నప్పుడు తల్లి వందనం అందజేయలేదు అంటున్నాం. ఇలా చిల్లర రాజకీయాలు, శవ రాజకీయాలు ఇలా పేపర్ల మీద రాస్తే బీసీలు మీ వైపు చూస్తారు, డైవర్షన్ అవుతారని తెలుసు. మీ పరిస్థితి ఏంటో తెలుసు, మీ పార్టీ పరిస్థితి ఏంటో తెలుసు, ప్రజలందరికీ తెలుసు. जिला कलेक्टर कड़पा श्रीधर चेकोरी की जानिब से आज कड़पा कलेक्ट्रेट में अवामी दरबार का इनेकाद अमल में आलिफ, जिसमें जिला भर से अवाम ने अपनी शिकायत और मसाइल से सरकारी ओहदेदारों के सामने पेश किए। कलेक्टर कड़पा श्रीधर चेकोरी ने जिले ओहदेदारों को अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत दी। इस मौके पर ज्वाइंट कलेक्टर कड़पा और तमाम शुबों के ओहदेदार मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस దీనికి ఫైల్ పంపించాలి సార్. तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।